Hello student, today I am teaching you business studies for class 11 and this is your chapter internal trade. Many of the following topics I covered regarding this chapter like internal trade, fixed shop retailers, then about the types of fixed shop retailers, having two types. One is small fixed shop retailers and another one is large fixed shop retailers. Then I taught you about the GST. Okay. Now we will discuss in this video about the vending machines. So a vending machine is a new form of retailing in which goods are sold with the help of slot machine operated by coins और tokens. तो जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं वो न्यू फॉर्म की जो रिटेलिंग मशीन्स हैं गुड्स को सोल और परचेस करने के लिए ऑपरेट की जाती हैं, ठीक है, जो कि दे ऑपरेटेड बाय द कॉइन्स और टोकन्स. सो दिस मैथड ऑफ रिटेल सेलिंग इज़ वेरी पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्रीज़. तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. These are used for selling several products like hot beverages, tea, coffee, platform tickets, milk, soft drinks, etc. So customers are required to insert necessary coin or token in a slot and press a button whereby the article is released automatically. तो या तो ये टोकन से चलती हैं या कॉइन से चलती हैं. As you insert into the vending machine necessary coins and token, it releases the article automatically. So the coins or tokens are periodically collected from the machine and articles are put in as needed. Okay. Vending machines are widely used as automated teller machine and the banking service. With the help of these machines, money can be withdrawn at any time without visiting any branch of a bank. So in our country, a very much important example of automatic vending machine is ATM. Okay. Now features of vending machine. This is self-service system, need of coin and tokens, 24/7 shopping, suitable product. तो ये सेल्फ सर्विस के द्वारा चलती है. इसमें टोकन और कॉइन्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है. 24 आवर हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ये सूटेबल प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है. जो डे टू डे की जो हम जैसे ईटेबल आइटम्स हैं, ठीक है, जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, उसका साइज़ और वेट यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है, ठीक है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ वेंडिंग मशीन. So anytime shopping, vending machines provide the facility of 24/7 shopping at all major locations. Self service, fast service है. More satisfaction to the customer, ये कस्टमर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है. इसका जो क्वालिटी और क्वांटिटी एकदम एक्यूरेट होता है, सेटिस्फाइड करता है. देन लिमिटेशन ऑफ वेंडिंग मशीन. तो वेंडिंग मशीन्स अपने आप में कॉस्टली है. इनका इनिशियल स्टेज में अगर हम इसको स्टार्ट करना चाहें तो मशीन का हमें कॉस्ट ज़्यादा हाई है, ठीक है. उल्टा रिपेयरिंग भी इसमें अगर मेंटेनेंस रिपेयरिंग का जो क्वाइट हाई. नो प्रायर इंस्पेक्शन, हम किसी प्रोडक्ट को लेने से पहले उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. देन कस्टमाइज प्रोडक्ट, जो वी कैन से प्रोडक्ट हैव टू डेवलप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन. मशीन के अंदर जो प्रोडक्ट होगा हम उसी को सेल कर पाते हैं. मतलब मशीन एक एक्यूरेट उन्हीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बनी हुई है. Now next we will talk about the Chamber of Commerce and Industry. So the Chamber of Commerce and Industry was formed as an association of business. ये business की associations होती हैं. Industrial houses in order to promote and protect their common interest and goal. तो जो industrial houses होते हैं उनके interest को और उनके goal को protect करने के लिए, promote करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है. तो main functions of Chamber of Commerce are इनका जो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का है एंड इंटरेस्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स. एक जगह से दूसरी जगह पर इंटरस्टेट करते हैं, गुड्स का सप्लाई करते हैं, ठीक है. एंड अदर ओटरीज एंड
अदर लोकल एविल्स, गवर्नमेंट के द्वारा म्यूनसिपल लिमिट बनाई जाती है, उस लिमिट्स में टैक्स एग्जाम्पशन में भी ये हेल्प करते हैं स्मॉल बिजनेसमैन्स को। हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, एक सेम टैक्स स्ट्रक्चर ईच एंड एवरी एरिया में रखा जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट से ये हेल्प लेकर के जो एग्रो प्रोडक्ट एंड रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको शॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कोई भी आपके ब्रांड को डुप्लीकेट ब्रांड नहीं बना सकता, ठीक है। ये भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स नोटिस करते हैं, टाइम टू टाइम चेक करते हैं, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी में आपकी हेल्प करते हैं। प्रमोटिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक रोड, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी और एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट होती हैं फॉर एनी ऑफ द बिजनेसमैन फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर ग्रोथ, और ऐसी कोई फैसिलिटीज़ हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Now main documents in internal trade. So first of all, especially we have 6 main documents in internal trade. One is performa invoice, second invoice, then debit card, debit note, credit note, and fifth lorry receipt and sixth railway receipt. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें परफॉर्मा इनवॉइस की, तो परफॉर्मा इनवॉइस अपने आप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इट इज़ वन ऑफ द स्टेटमेंट सेंड बाय अ सेलर, जो सेलर सेंड करता है, containing detailed information regarding price, quality, grade, size, weight and all other relevant details about the product, ठीक है। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड उनका प्राइस, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। It is of immense use of the prospective buyers when the buyer is interested in knowing the amount which he would have to pay in case he place an order. अगर वो किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, प्लेस ऑर्डर करेगा, ठीक है। तो एक मेन्यू की तरह काम करता है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले या प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हमें एक मेन्यू देखना बहुत ज़रूरी है, तो दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मा इनवॉइस, ओके। फिर है इनवॉइस। अब इनवॉइस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट सेंट इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज। अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, ठीक है, बाय द सेलर टू द बायर starting therein the particulars of goods and purchased. It is also known as bill or memo. इसका क्या यूज़ है? ये एक डिफरेंस है कि जो परफॉर्मा इनवॉइस है और इनवॉइस में ये डिफरेंस है कि परफॉर्मा इनवॉइस बिफोर सेलिंग ऑफ द गुड्स, बिफोर परचेजिंग द गुड्स, एंड इनवॉइस इज आफ्टर परचेजिंग द गुड्स, इनवॉइस बनता है, ठीक है। सो स्पेशली इन इनवॉइस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर information has provided like value, trade discount, GST, terms of payment, particular goods purchased such as quantity, rate, total value, all these things. Third, debit note is a note sent by one party, एक पार्टी दूसरी पार्टी को सेंड करती है, other party that has account to debit in the sender book, कि हमने सेंडर बुक के अकाउंट में से इतना पैसा हमें चाहिए, डेबिट होना है। द यूजर कंटेंट डेबिट नोट सीरियल नंबर, एक सीरियल नंबर होता है जिसमें नेम, एड्रेस ऑफ द बायर, डेट इशू, नेम, रिसीवर का एड्रेस, ये सारी चीज़ लिखी रहती है, ठीक है। और अगर जो डेबिट कार्ड है स्पेशली वो बायर बनाता है, या तो वो ओवरचार्ज हो चुका है उस कंडीशन में, या वो अपने गुड्स को रिटर्न, वो जो लिया हुआ है उसको रिटर्न करना चाहता है, ठीक है, तो डेबिट नोट बनाएगा वापस अपना पैसा लेने के लिए, ठीक है, जो कि उसने दिया हुआ है। उसके बाद क्रेडिट नोट इसी का अपोजिट है, इज नॉट सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर, इसमें भी एक पार्टी दूसरे को सेंड करती है। दैट हैज अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द सेंडर्स बुक, जो कि सेंडर्स की बुक क्रेडिटेड हो रखा है, अमाउंट जो आया है, ठीक है, किसी कारण से वो वापस जाना है, ओवरचार्ज हो गया है। सो क्रेडिट नोट इज सेंड बाय द सेलर व्हेन ही हैज ओवरचार्ज द बायर और व्हेन ही रिसीव बैक द गुड्स। So credit note is very useful for the customer as it reduce the amount of the customer indebtedness. फिर है फिफ्थ नंबर में लॉरी रिसिप्ट, तो ये ट्रांसपोर्ट कंपनीज के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसमें दोनों का ही कंसाइनमेंट होना ज़रूरी है, जो कंसाइनर है और जो मतलब बायर और सेलर दोनों का, ठीक है। सो इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट दैट गुड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इतना गुड्स गेट कर लिया है। सेकेंड, इट ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट ऑफ
टाइटल ऑफ गुड्स, कौन कौन से उसमें गुड्स हैं वो उसमें मेंशन होते हैं, ठीक है, डिलीवरी का टाइम, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द गुड्स। फिर 6th है रेलवे रिसिप्ट। सो as lorry receipt has meant by the transport company, railway receipt has meant by the railway authorities, okay, the things for the same as lorry receipts has meant. So ये इसमें क्या होता है कि जो अंडरटेकिंग टू कैरी द गुड्स फ्रॉम बुकिंग स्टेशन टू द डेस्टिनेशन, जहाँ तक वो पहुँचाया जा रहा है वहाँ तक का उसमें बुकिंग कर दिया जाता है। डिलीवर द सेम एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंसाइनर, जो कंसाइनर है जैसे जैसे उसने इंस्ट्रक्शन किया उसके अकॉर्डिंग काम होता है। It is also acknowledgement of the fact that goods have been received by the railway authorities, कि railway authorities ने इतना goods get कर लिया है। And it is also a document of title to the goods. The consignor send the railway receipt to the consignee to enable him to take delivery of the goods, ठीक है, तो ये है आपका railway receipt. Now your chapter is complete. In next video I'll explain international business, that is chapter 10. So thank you and have a nice day.